Third question, pH for a solution of a salt undergoing anionic hydrolysis, say CH3CONA, is given by. तो एनायनिक हाइड्रोलिसिस वाला केस कौन सा था जो फर्स्ट केस मैंने डिस्कस किया था, बल्कि यहाँ तो एग्जाम्पल इज ऑल्सो गिवन कि CH3CONA वाले केस में अब हाइड्रोलिसिस देखें तो कैसे हाइड्रोलिसिस होना है इसका, प्लस H2O giving you CH3COH plus NaOH. तो ये आयनाइज होगा, इट विल फॉर्म CH3CO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव प्लस H2O, और ये वीक एसिड है तो ये मैं अनआयनाइज्ड फॉर्म में रख रहा हूं, एंड NaOH जो है Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, Na positive cancels out on both the sides. So this is anionic hydrolysis. Acetate ion is getting hydrolyzed to form CH3COH and OH negative. So basic solution बनेगी. pH has to be greater than 7. And जो first case था, this is the first case. And for the first case pH क्या था? Half pKw plus pKa plus log of C. So it has to be A option. 43rd का A is 44th question. If the solubility product of AgBrO3 and Ag twice SO4 are 5.5 into 10 raised to the minus 5 and 2 into 10 raised to the minus 5 respectively, the relationship between the solubilities of these can be correctly represented as. तो ऐसे क्वेश्चंस में अगर solubility product given है आपको तो आपने S निकालना होता है, और जिसकी S की वैल्यू ज्यादा है वो solubility उसकी ज्यादा होगी. So this is AgBrO3. तो कैसे ये आयनाइज होना है, Ag पॉजिटिव प्लस BrO3 नेगेटिव. अगर सॉल्युबिलिटी ऑफ AgBrO3 इज S मोल्स पर लीटर तो ये कितने बनेंगे, Ag पॉजिटिव S, और ये कितने बनने चाहिए, दिस विल ऑल्सो बी S. सो व्हाट शुड बी KSP. KSP इसमें क्या होगा, Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इंटू BrO3 नेगेटिव की कंसंट्रेशन इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एंड दिस इज अ टाइप ऑफ KSP will be equal to S square. S in this case will be under root of KSP. तो KSP given है आपको AgBrO3 का, और KSP is 7.4 into 10 raised to power minus 3. Sorry, this is not KSP. KSP is given, that is 5.5 into 10 raised to power minus 5 under root of this, and this will be equal to under root of KSP आपने निकालना है, और KSP is 5.5 into 10 raised to minus 5 under root of this will be equal to 7.4 into 10 raised to power minus 3. This will be S, value of S, 7.4 into 10 raised to power minus 3. Similarly, in case of Ag twice SO4 also, you will calculate the value of S. So second case जो है, that is Ag twice SO4, ये कैसे आयनाइज होना है, twice Ag positive plus SO4 2 negative. If S is the solubility of this salt, S moles per liter अगर dissolve होता है, ये soluble है, तो ये कितना बनना चाहिए, 2S, और this will also S. This will be S. So KSP क्या होगा, Ag positive raised to power 2, SO4 2 negative. So this has to be twice S whole square into S, that is 4S cube is KSP. So S cube will be equal to KSP divided by 4. So S will be cube root of this, KSP divided by 4 raised to power 1 by 3. So what is KSP? KSP is, in this case, 2 into 10 raised to power minus 5 divided by 4 raised to power 1 by 3, and this will be equal to 1.7 into 10 raised to power minus 2. So you have to compare the solubilities. जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट वैल्यूज ही निकाल लें, अगर वैसे आप कंपैरिजन हो रहा है कि रिलेटिवली कौन सा बड़ा है तो दैट कैन बी जस्ट एज द आंसर.
So इसमें तो मैंने एग्जैक्टली निकाल के बताया आपको कि S is 7.4 into 10 raised to minus 3 in case of AgBrO3 and S is equal to 1.7 into 10 raised to minus 2 in case of Ag twice SO4. कौन से की वैल्यू ज्यादा है? S कौन सा बड़ा है? 1.7 into 10 raised to minus 2. That means solubility of Ag twice SO4 is greater than solubility of AgBrO3. So 44th का B is the correct option. 45th question, pH of a solution containing 0.3 molar HA and 0.1 molar A negative. Kb given है 1.0 into 10 raised to minus 5 is और pH पूछा हुआ है. So आपने बफर का pH निकालना है because this is a buffer. HA is weak acid and A negative is the concentration of its salt with a strong base. So 45th का pH निकालना है आपको. बफर एसिडिक बफर है. pH के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, हेंडरसन इक्वेशन. pH इज इक्वल टू P of Ka प्लस log of salt concentration upon acid concentration. प्रॉब्लम है कि यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ pKa. pKb गिवन है यहां पे, सॉरी Kb गिवन है. You have to calculate first of all Ka then pKa. तो Kb अगर पता हो और Ka निकालना हो आपने तो Ka into Kb is equal to 10 raised to power minus 14. This formula you have to use. Ka into Kb is equal to 10 raised to minus 14. Now put the value of Kb. Ka into Kb is 10 raised to power minus 5 is equal to 10 raised to power minus 14. So Ka will be equal to 10 raised to power minus 14 divided by 10 raised to power minus 5. So this will be 10 raised to power minus 9 is the value of Ka. Now pKa क्या होता है? pKa is equal to minus log of Ka, that is minus log of 10 raised to minus 9 and it will be 9. अब यहां पे वैल्यू डालिए आप, इस फॉर्मूला में वैल्यू डालिए आप. यू नो द वैल्यू ऑफ pKa. नाउ pKa, सो pH क्या आ जाएगा? pH इज इक्वल टू pKa. pKa की वैल्यू क्या है आपके पास? 9 प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट. सॉल्ट कौन सा है? 0.1 मोलर. सो 0.1 divided by acid की concentration and acid is 0.3. So divided by 0.3. क्या बन गया ये? pH is equal to 9 plus log of 1 upon 3. That is pH is 9 minus log of 3. Log of 1 upon 3 is actually equal to log of 1 minus log of 3. And what is log of 1? Log of 1 is 0. So this will be 0 minus log of 3. 9 minus log of 3. That is the correct answer. 9 minus log of 3. And that is D option. 45th का D, 9 minus log 3 is the correct option. Again come to this question. pH निकालना है आपको और ये एसिडिक बफर है because 0.3 molar HA and 0.1 molar A negative is given. That means एसिडिक बफर है ये because एसिडिक बफर क्या होता है? जिसमें कि वीक एसिड हो और उसका सॉल्ट हो विद अ स्ट्रॉन्ग बेस. तो आपने फॉर्मूला यूज करना है pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट कंसंट्रेशन अपॉन एसिड कंसंट्रेशन. प्रॉब्लम है कि pKa नहीं पता आपको, यू आर गिवन Kb वैल्यू और Kb से Ka कैसे निकलेगा? Ka इंटू Kb इज इक्वल टू 10 रेज टू माइनस 14. सो Ka इंटू 10 raised to minus 5 is equal to 10 raised to minus 14. Ka will be equal to 10 raised to minus 9. और pKa क्या होता है? pKa is equal to minus log of Ka. That is minus log of 10 raised to minus 9 is equal to 9. Now put the value of pKa in this equation. So pH will be equal to 9 plus log of salt की concentration given है 0.1
और एसिड की कंसंट्रेशन गिवन है 0.3, सो दिस विल बी pH इज इक्वल टू 9 प्लस log of 1/3, that is equal to 9 minus log of 3. So 45th का D 9 minus log 3 is the answer. Next question is 46th question. A solution contains Pb2 positive ion. In order to precipitate Pb2 positive ion, sodium sulfate solution is required to be added. What is the concentration of sulfate ion required to reduce the concentration of Pb2 positive to 2 into 10 raised to power minus 6 moles per liter? तो इसका मीनिंग क्या है कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन required to reduce the concentration of Pb2 positive to 2 into 10 raised to minus 6 moles per liter. Reduce the concentration of Pb2 positive to that much value. Reduce the value का मतलब है कि उससे ज्यादा जितना है Pb2 positive वो सेटल डाउन हो जाए, वो प्रेसिपिटेट हो जाए. और सॉल्यूशन में, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में Pb2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन जो डिसॉल्व्ड फॉर्म में है वो कितनी रह जानी चाहिए? 2 into 10 raised to power minus 6 moles per liter. That means Pb2 positive जो concentration है that is corresponding to the saturated solution. और SO4 negative कितना चाहिए कि Pb2 positive की concentration जितनी दी हुई है उतनी रह जाए. तो SO4 concentration कैसे निकालोगे? SO4 negative की concentration in this case KSP given है आपको. और PbSO4 के लिए अगर KSP लिखना हो आपने, हाउ विल यू राइट डाउन द वैल्यू ऑफ KSP फॉर दिस? दिस विल बी Pb2 पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव. This will ionize in this form PbSO4 in the saturated solution. So KSP क्या होगा? KSP will be Pb2 positive concentration into SO4 negative concentration. Now ये कंसंट्रेशन गिवन है आपको, जो दी हुई वैल्यू की 2 into 10 raised to minus 6 रह जानी चाहिए. द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट कितना होना चाहिए so that the concentration of Pb2 positive reduced form में 2 into 10 raised to minus 6 रह जाए. तो वो वाली वैल्यू जो है that is actually this value Pb2 positive जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन होनी चाहिए Pb2 positive की. तो KSP की वैल्यू डाल दें 1.8 into 10 raised to power minus 8 is equal to Pb2 positive की कंसंट्रेशन 2 into 10 raised to power minus 6 into सल्फेट कंसंट्रेशन हमने निकालनी है कि कितनी चाहिए. दैट मीन सल्फेट कंसंट्रेशन जो होगी SO4 नेगेटिव कंसंट्रेशन दैट विल बी 1.8 into 10 raised to power minus 8 divided by 2 into 10 raised to power minus 6. अगर इसको सॉल्व करें दिस विल बी इक्वल टू 9 into 10 raised to power minus 3. This should be the concentration of sulfate moles per liter में 9 into 10 raised to power minus 3 जो कि होनी चाहिए so that Pb2 positive की concentration is reduced to this much value 2 into 10 raised to minus 6. Reduced to this much value means इतनी concentration Pb2 positive की होनी चाहिए saturated solution में. इसमें just I have written the value of KSP. KSP for PbSO4 is Pb2 positive concentration into sulfate 2 negative जो है SO4 2 negative concentration. This value is given 1.8 into 10 raised to minus 8 is given. Pb2 positive is given. Sulfate 2 negative you have to calculate and that is equal to 9 into 10 raised to power minus 3. That is 46th का C is the correct option. Now 47th question. Equal volumes of 0.01 molar calcium chloride and 0.004 molar Na2SO4 are mixed. What is the ionic product of calcium sulfate in the resulting solution? तो कैल्शियम सल्फेट की आयनिक प्रोडक्ट क्या होगा, उसके लिए हमें Ca2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन और SO4 नेगेटिव की कंसंट्रेशन चाहिए इन द रिजल्टिंग सॉल्यूशन. दैट मींस आपको कैल्शियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन निकालनी है जब मिक्स कर दिया गया है कैल्शियम क्लोराइड विद Na2SO4.
कैसे निकलेगी कंसंट्रेशन? इक्वल वॉल्यूम्स मिक्स की हैं दोनों की कैल्शियम क्लोराइड भी और Na2SO4 भी। मान लीजिए दोनों का 1 लीटर ईच ऐड किया गया है, 1 लीटर ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एंड 1 लीटर ऑफ Na2SO4। अब कैल्शियम क्लोराइड स्टार्टिंग में कितना था? 1 लीटर। कितने मोलैरिटी थी? 0.01। बाद में मोलैरिटी कितनी होगी वो कैलकुलेट करनी है, M2 निकालना है। V2 कितना हो रहा है? ऐड कर रहे हैं जब दोनों सॉल्यूशंस को, कितना V2 हो जाएगा? 1 + 1 2 लीटर्स विल बी V2। तो कैल्शियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे आप? 1 लीटर मान लो कैल्शियम क्लोराइड मिक्स किया 1 लीटर ऑफ Na2SO4 के साथ, तो आप यूज करोगे इक्वेशन M1V1 = M2V2। इनिशियली मोलैरिटी कितनी गिवन है इसकी कैल्शियम क्लोराइड की? 0.01। वॉल्यूम कितनी है? 1 लीटर। M2 आपको निकालना है, जब मिक्स करने के बाद मोलैरिटी होनी है, दैट यू हैव टू कैलकुलेट, लेट दैट बी M2। वॉल्यूम कितनी हो रही है? क्योंकि एक एक दोनों मिक्स कर रहे हैं तो वॉल्यूम हो रही है मिक्स करने के बाद 2 लीटर्स। तो M2 क्या आ जाएगा? M2 will be 0.01 into 1 divided by 2. This is equal to, let it be 0.01 upon 2, ऐसे रहने देते हैं इसको। सेकेंड आप निकालिए कंसंट्रेशन ऑफ Na2SO4 मिक्स करने के बाद कितना होना है, दैट यू हैव टू कैलकुलेट। इसमें भी सेम यूज कीजिए आप। M1V1 = M2V2। M1 कितना गिवन है? 0.004। V1 कितना गिवन है? कितना ले रहे हैं हम? अपने आप ले रहे हैं, इक्वल वॉल्यूम्स हैं तो 1-1 लीटर लिया दोनों का। M2 you have to calculate। V2 कितना आ रहा है? 2। So M2 will be 0.004 divided by 2, that is equal to 0.002। अब आपको कंसंट्रेशन दोनों की पता चल गई, कैल्शियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन और Na2SO4 की कंसंट्रेशन। और पूछ रहा है ये, व्हाट इज द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ CaSO4 इन द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। आयनिक प्रोडक्ट क्या होगा? Ca2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन इनटू सल्फेट 2 नेगेटिव कंसंट्रेशन। Ca2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी होगी? जितनी की कैल्शियम क्लोराइड की है। क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड कैसे आयनाइज होगा? कैल्शियम क्लोराइड जो है ऐसे आयनाइज होगा कंप्लीटली इनटू Ca2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। जितनी कंसंट्रेशन इसकी है उतनी ही कंसंट्रेशन इसकी बनेगी। कितनी कंसंट्रेशन आ रही है CaCl2 की? 0.01 upon 2. Same concentration will be of Ca2 positive. Now come to Na2SO4। SO4 नेगेटिव की कंसंट्रेशन कितनी होगी? जितनी की Na2SO4 की है सेम होगी, बिकॉज Na2SO4 जो है वो आयनाइज होगा ट्वाइस Na पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। जितनी इसकी होनी है उतनी इसकी होनी है। अगर 1 मोल ये डिसोसिएट हो रहा है तो ये भी 1 मोल बनेगा। अगर इसकी 1 मोलर है कंसंट्रेशन तो दिस विल आल्सो बी 1 मोलर। ना इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 0.002, तो इसकी कितनी होगी? 0.002। नाउ कैल्शियम सल्फेट का आयनिक प्रोडक्ट, कैल्शियम सल्फेट के लिए आयनिक प्रोडक्ट दैट विल बी Ca2 positive concentration into SO4 2 negative concentration. This will be equal to 0.01 divided by 2 into 0.002. That will be, and this will be equal to 10 raised to power minus 5 will be the answer. 10 raised to power minus 5 is the correct option, and that is A option, 10 raised to power minus 5. देखो फिर से देखिए 47th क्वेश्चन जो है, इक्वल वॉल्यूम्स दोनों की मिक्स की हैं। 0.01 मोलर कैल्शियम क्लोराइड है एंड 0.004 मोलर Na2SO4 है। 1 लीटर मान लीजिए कैल्शियम क्लोराइड का ऐड किया, 1 लीटर मान लीजिए Na2SO4 का ऐड किया। तो ऐड करने के बाद, एडिशन होने के बाद कैल्शियम क्लोराइड की क्या मोलैरिटी होनी चाहिए वो निकालना है हमने बाय यूजिंग द इक्वेशन, मोलैरिटी इक्वेशन M1V1 = M2V2। दिस इज गिवन। M1 जो है स्टार्टिंग में 0.01, V1 कितना है जो हम ले रहे हैं कि 1 लीटर, M2 निकालना है
मिक्स कर देंगे दोनों के 1-1 लीटर, तो कितनी वॉल्यूम आ जाएगी मिक्स करने के बाद? 2 लीटर्स। तो M2 you have to calculate, this is 0.01 upon 2. Now कैल्शियम क्लोराइड ऐसे डिसोसिएट होता है Ca2 पॉजिटिव प्लस 2 Cl नेगेटिव में। जितनी कंसंट्रेशन कैल्शियम क्लोराइड की होगी उतनी ही कंसंट्रेशन Ca2 पॉजिटिव की होगी, तो दिस विल बी 0.01 अपॉन 2. नाउ कम टू Na2SO4, जितनी M1V1 is equal to M2V2 you are using, M1 is 0.004 into 1, M2 निकालना है, मिक्स करके वॉल्यूम आ रही है 2 लीटर्स, so M2 will be equal to 0.004 upon 2, that is equal to 0.002. Now Na2SO4 कैसे आयनाइज होगा? 2Na positive plus SO4 2 नेगेटिव में, so this will ionize, तो जितनी कंसंट्रेशन इसकी होनी है अपने आप की उतनी ही कंसंट्रेशन SO4 2 नेगेटिव की होनी है, so this will be 0.002. Now what about the ionic product of calcium sulfate? CaSO4 का ionic product का मतलब क्या होता है? Ionic product of CaSO4 is Ca2 positive की concentration into SO4 2 negative की concentration. Values डाल दीजिए ऊपर से, Ca2 positive की कितनी निकली है? 0.01 upon 2, और सल्फेट 2 नेगेटिव की कितनी आ रही है? 0.002, and this will be multiply करें और 2 से divide करें, this will be equal to 10 raised to power minus 5. So 47th का A is the correct option. Next question is 48th question. The pKa of an acid having ionization constant, Ka value given है 10 raised to power minus 5. Ka given है आपको 10 raised to power minus 5. pKa you have to calculate. तो 48th is quite easy question. pKa निकालना है, Ka given है. This is a direct question. Ka is 10 raised to a minus 5. What will be pKa? pKa क्या होता है? Minus log of Ka. That is minus log of 10 raised to power minus 5. What will be its value? 5. So 48th का A 5 is the correct option. Next question is 49th question. A certain weak acid Ha has a dissociation constant of 10 raised to power minus 5. The equilibrium constant for its reaction with a strong base is. Now come to 49th question. Weak acid Ha का dissociation constant given है. Weak acid का dissociation constant देने का मतलब क्या हुआ कि कौन सा reaction है, पहले वो लिखिए आप. Ha plus H2O, weak acid मान लीजिए Ha है, given है कि weak acid is Ha. So Ha plus H2O क्या बनेगा? H3O positive aqueous plus E negative aqueous. अब इसके लिए जो डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखे आप कैसे लिखोगे? इसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka कैसे लिखोगे? Ka will be H3O positive concentration into E negative concentration divided by Ha की concentration. H2O नहीं लेना है because this इसकी concentration with the passage of time will hardly change. H2O is in excess, तो इसकी concentration will hardly change. So concentration change नहीं हो रही है, तो we will not consider this H2O. Ka will be H3O positive concentration into E negative concentration divided by Ha concentration, and this is given, value is given, that is equal to 10 raised to power minus 5. Now he is asked for the equilibrium constant for its reaction with a strong base. Ha का जब रिएक्शन होगा कहता विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, दैट इज OH नेगेटिव के साथ जब रिएक्शन होगा, उस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू K की वैल्यू निकालिए. दैट इज द क्वेश्चन. तो Ha कैसे रिएक्ट होगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ? OH नेगेटिव के साथ H2O प्लस इट विल बी A नेगेटिव. इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K will be H2O, you will not consider H2O, that will be E negative divided by Ha into OH negative concentration.
नाउ इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको करना है कि यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस विद H पॉजिटिव, डिवाइड इट बाय H पॉजिटिव। अगर H पॉजिटिव से कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई करें और उससे डिवाइड भी कर दें तो वैल्यू, ये इक्वेशन जो है दैट विल नॉट चेंज। नाउ दिस इज, इतना जो होता है, दिस इज H पॉजिटिव इंटू H नेगेटिव कंसंट्रेशन इज KW, और ये जो चीज है HA डिवाइडेड बाय E नेगेटिव एंड H पॉजिटिव, दिस इज KA। देखिए इसको कैसे, HA कैसे डिसोसिएट होता है वीक एसिड, H पॉजिटिव प्लस E नेगेटिव, KA विल बी H पॉजिटिव इंटू E नेगेटिव डिवाइडेड बाय HA। So HA डिवाइडेड बाय, या फिर H पॉजिटिव इंटू A नेगेटिव डिवाइडेड बाय HA, दिस इज KA। तो क्या बन गया ये, K इज इक्वल टू KA डिवाइडेड बाय KW, दिस इज KA डिवाइडेड बाय KW। और आपको K की वैल्यू निकालनी है, आपको KA पता है और KW भी आपको पता है। KA इज गिवन, दैट इज 10 raised to power -5 divided by KW is 10 raised to power -14. So this will be equal to 10 raised to power plus 9. This will be 10 raised to power plus 9. So again come to this question 49th का, वैसे it will be B 1.0 into 10 raised to power plus 9 is the correct option. Again come to this question 49th question. इसने बोला है certain weak acid HA has a dissociation constant of 1.0 into 10 raised to power -5. weak acid HA जो है H2 के साथ जब कंबाइन होगा ऐसे बनेंगे आयंस H3O positive and E negative ion. Ka for weak acid dissociation constant will be H3O positive into E negative divided by HA only. This will not change with the passage of time, so it is not taken. So this is 10 raised to -5. Now HA plus OH negative, because second part of the question is the equilibrium constant for its reaction with a strong base is, that you have to calculate. HA का strong base के साथ reaction HA plus OH negative will give you H2O plus E negative. Equilibrium constant K मान लेते हैं, that will be E negative divided by concentration of E negative divided by HA into H negative. Now I have multiplied this equation, ऊपर भी H positive से नीचे भी H positive से, H पॉजिटिव इंटू H नेगेटिव KW है हमें पता है, और ये जो चीज आएगी E नेगेटिव प्लस इंटू H पॉजिटिव डिवाइडेड बाय HA, दिस इज KA, बिकॉज HA gives you H positive plus E negative, KA will be H positive into E negative divided by HA, this is KA. So K की वैल्यू क्या आ रही है, KA divided by KW. KA is 10 raised to power -5 divided by KW is 10 raised to power -14, so this will be 10 raised to power 9. So 49th का B is the correct option. 50th question, which of the following is the strongest Bronsted base? हमने ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट जब किया था तो मैंने उसमें बताया था कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस होगा उसका कंजुगेट एसिड शुड बी वीकेस्ट। तो इन सारों के पहले आप एसिड्स देखिए, एसिड्स क्या क्या बनेंगे। 50th क्वेश्चन में ये सारे बेसिस हैं, बेसिस हैं, तो ये क्या एक्सेप्ट करेंगे ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट के हिसाब से, दे विल एक्सेप्ट प्रोटॉन्स, और जब प्रोटॉन्स एक्सेप्ट करेंगे ये तो इनके कंजुगेट एसिड्स आ जाएंगे। Cl नेगेटिव एक H पॉजिटिव लगा दें, क्या बन गया HCl। सेकंड ऑप्शन है NH2 नेगेटिव एक H पॉजिटिव लगा दें, क्या बन जाएगा NH3। थर्ड ऑप्शन पे आइए, OH नेगेटिव में H पॉजिटिव लगा दें, क्या बनेगा H2O। F नेगेटिव में H पॉजिटिव लगा दें HF। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस, जिसका कंजुगेट एसिड इज द वीकेस्ट, वही स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा। तो वीकेस्ट एसिड इन सब में कौन सा है, NH3 इज द वीकेस्ट एसिड, बिकॉज दिस इज एक्चुअली अ बेस, वैसे बेस की तरह बिहेव करता है, बट दिस इज द वीकेस्ट एसिड, तो इसका कंजुगेट बेस जो होगा NH2 नेगेटिव, दैट विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। सो 50th का B NH2 नेगेटिव इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में जस्ट मैंने क्या किया, अगर ये बेसिस हैं तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट के हिसाब से इनके एसिड्स कौन से होने चाहिए, कंजुगेट एसिड्स कैसे निकलेंगे,
H पॉजिटिव ऐड करवा दो सारों में, Cl नेगेटिव में HCl, NH2 नेगेटिव में NH3, OH नेगेटिव में H2O, F नेगेटिव में HF। ये इनके एसिड्स आ गए। अब इनमें सबसे वीकेस्ट कौन सा है? NH3। जो वीकेस्ट है उसका कंजुगेट बेस विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट। सो B is the correct answer for 50th question. Next is 51st question. If C is the number of moles of a monoprotic acid present in 1 liter of solution and alpha is the degree of dissociation for weak acid, the dissociation constant of acid is given by the expression. So 51st पे आइए। वैसे आपको पता है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द एसिड के क्या होता है? सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। HA प्लस H2O, वीक एसिड है HA और इट विल फॉर्म H3O पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव। इसकी कंसंट्रेशन मान लीजिए C है स्टार्टिंग में, ये 0 होगा, ये 0 होगा। लेट अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, C इंटू 1 माइनस अल्फा रह जाएगा। दिस विल बी C अल्फा, दिस विल बी C अल्फा। कि A क्या होता है? कि A इज H3O पॉजिटिव कंसंट्रेशन इंटू A नेगेटिव कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय HA कंसंट्रेशन। So this will be C alpha into C alpha divided by C into 1 minus alpha. C cancels out. We are left only with C alpha square upon 1 minus alpha. अगर alpha बहुत small है तो Ka will be equal to C alpha square. But this is C alpha square upon 1 minus alpha. So 51st का D is the correct option. C alpha square upon 1 minus alpha. Next question is 52nd question. 1 liter of water contains 10 raised to the minus 7 moles of H positive ions. Degree of ionization of water is, अल्फा निकालना है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन निकालनी है। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन मींस फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स दैट हैव डिसोसिएटेड इनटू आयंस। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने कितने आयनाइज हुए हैं। H2O का 1 लीटर बोला है इसने, 1 लीटर ऑफ H2O। 1 liter of H2O, since density of water is 1 grams per liter, so what should be the number of moles present in 1 liter of H2O? Number of moles कितने होने चाहिए? 55.5. So H2O कैसे डिसोसिएट होगा पहले ये देख लें। 52nd क्वेश्चन, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में। Now this is given to you कि 1 लीटर वाटर है तो H पॉजिटिव कितने हैं उसमें? 10 raised to power minus 7 moles। H2O कितना होगा 1 लीटर में? कितने मोल्स होने चाहिए H2O के? 55.5। दिस यू हैव टू रिमेंबर ऑल्सो। वैसे मैंने कैलकुलेट किया भी है पहले ये कि 1 लीटर वाटर हो तो उसमें कितने मोल्स होते हैं? 55.5। तो 55.5 में से कितने मोल्स डिसोसिएट हुए? 10 raised to minus 7 only। सो फ्रैक्शन कितनी डिसोसिएट हुई? अल्फा कैसे निकलेगा? जितने आयंस बने हैं 10 raised to minus 7 डिवाइडेड बाय जितने टोटल थे 55.5। 55.5 में से जस्ट 10 raised to minus 7 हैव डिसोसिएटेड। सो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन परसेंटेज में है तो इसको 100 से हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे। लेकिन अल्फा पहले कैसे निकल रहा है? जितने आयनाइज हुए 10 raised to minus 7 divided by जितने टोटल थे 55.5 into 100, that will be percentage ionization. And if we calculate this 10 raised to minus 7 upon 55.5 into 100, this will be equal to 1.8 into 10 raised to power minus 7%. This will be the answer for this question, 52nd question. देखिए कैसे किया कि 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर वाटर कैसे आयनाइज कैसे होता है वाटर? पहली बात ये H2O gives you H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। और 1 लीटर में कितने H पॉजिटिव प्रेजेंट है? 10 raised to power minus 7। ये कितने होने चाहिए H2O 1 लीटर में? 55.5। 55.5 टोटल थे, कितने आयनाइज हुए? 10 raised to minus 7। अल्फा क्या होगा? जितने आयनाइज हुए डिवाइडेड बाय टोटल into 100, that is 1.8 into 10 raised to power minus 7%. So the answer for 52nd question is A option.
Next question is 53rd question. An acid solution of pH 6 is diluted 1000 times. The pH of solution becomes approximately. So 53rd देखिए, pH solution, pH जो है acid solution का that is 6. स्टार्टिंग में जो pH लिया गया सोल्यूशन का that is 6. pH 6 होने का मतलब क्या है? पहले H पॉजिटिव कंसंट्रेशन निकालिए इसमें से. pH अगर 6 है that is minus logarithm of H positive is equal to 6. और we can say that log of H positive concentration is equal to minus 6. तो H positive concentration क्या होगी? एंटी लॉगरिथम लोगे आप इसका और एंटी लॉग ले इसका, तो दैट विल गिव यू H पॉजिटिव कंसंट्रेशन एंड दैट विल बी इक्वल टू 10 रेज टू पावर माइनस 6. अब इसको डाइल्यूट कर रहे हैं 1000 टाइम्स. व्हाट डज इट मीन? if you are diluting this solution by 1000 times, that means you are reducing the concentration of H positive by 1000 times. तो डाइल्यूशन जब करना है तो that means H positive concentration नया वाला जो बनेगा that will be, let that be H positive dash, that will be 10 raised to power minus 6 divided by 1000, that is 10 raised to power 3, and this will be equal to 10 raised to power minus 9. So H positive dash is equal to 10 raised to the minus 9. अब pH क्या होगा? That's what he is asking for. The pH of the solution becomes approximately. अब pH क्या आ जाएगा? अगर इसका ही pH निकाल दिया जाए तो pH क्या आ जाएगा? H positive concentration अगर ये वाली कंसिडर की जाए, pH will be 9. But it's not possible that an acidic solution has the pH greater than 7. So that means solution dilute हो चुकी है अब इस केस में, कि इस केस में आपको H positive due to H2O भी कंसिडर करना पड़ेगा. एंड H पॉजिटिव ड्यू टू H2O जब कंसिडर करोगे, 10 रेज टू माइनस 7 जब कंसिडर करोगे, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस का जो आंसर आता है दैट इज 6.96. सो इट विल बी 53rd का इट विल बी 6.96 विल बी द आंसर. ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन. एक बार फिर से देखिए, स्टार्टिंग में जो पीएच दिया सॉल्यूशन का दैट इज 6. पीएच 6 का मतलब होता है माइनस लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल टू 6. Logarithm of H positive is equal to minus 6. H positive concentration is equal to 10 raised to a minus 6. H positive, नया जो H positive आएगा डाइल्यूशन के बाद, that will be 10 raised to minus 6 divided by 1000. Because dilute किया गया है solution को, dilution by 1000 times means divided by 1000 किया, and that will be 10 raised to a minus 9 is the new H positive concentration. तो अब अगर आप pH निकालते हैं, माइनस लॉगरिथम ऑफ दिस H पॉजिटिव लेते हैं, दैट विल गिव यू द pH वैल्यू इक्वल टू 9, बट दिस इज नॉट पॉसिबल दैट एन एसिडिक सॉल्यूशन हैज pH ग्रेटर देन 7. सो इस केस में ये सॉल्यूशन इतना डाइल्यूट हो चुका है कि यू हैव टू कंसीडर H पॉजिटिव टोटल. H पॉजिटिव ड्यू टू एसिड दैट इज 10 रेज़ टू माइनस 9 एंड H पॉजिटिव ड्यू टू वाटर दैट इज इक्वल टू 10 रेज़ टू माइनस 7. दोनों को ऐड करोगे दैट विल गिव यू H पॉजिटिव टोटल एंड minus logarithm of that H positive total will be equal to 6.96. So answer is 53rd ka A option, 6.96. Next question is 54th question. In which of the following solutions the percentage dissociation of acetic acid is maximum? Percentage dissociation maximum मांग रहा है. That means alpha की वैल्यू पूछ रहा है कि किस केस में alpha will be maximum. Now alpha होता किसके बराबर है? 54th क्वेश्चन. अल्फा क्या होता है? अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बाय सी. नाउ व्हाट्स द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड दिस सी? इनवर्स रिलेशन. अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी. जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना कम अल्फा होगा, जितनी कम सी होगी उतना ज्यादा अल्फा होगा. So इस केस में which of the following solutions the percentage dissociation of acetic acid is the maximum? अल्फा मैक्सिमम किस में होगा? जिसमें C concentration is minimum. तो C has to be minimum. तो C minimum देखिए किस में है? C ऑप्शन में 0.001 मोलर CH3COH. So 54th का C is the correct option. Next is 55th question. The concentration of H positive and concentration of OH negative
of a 0.1 molar aqueous solution of 2% ionized weak acid is H positive concentration मांगी है and OH negative concentration मांगी है. C is given of an aqueous solution 0.1 molar है and alpha is also given 2%, that means 2 upon 100 is alpha, और उसका अपने H positive और OH negative देना है. Ionic product is also given 10 raised to minus 12 and 10 raised to minus 14. तो इसमें देखिए 55th में H पॉजिटिव कंसंट्रेशन क्या होता है? H पॉजिटिव कंसंट्रेशन C इंटू अल्फा. C कितना गिवन है? 0.1. अल्फा कितना गिवन है? 2%. 2% मीन्स 2 अपॉन 100. कितना आ जाएगा ये? 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2. ये हो जाएगा, ऑलरेडी 10 रेज टू माइनस 1 प्रेजेंट है, तो इट विल बी 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 विल बी कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव. दिस इज 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 3, और 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 वाला वैसे एक ही ऑप्शन है, दैट इज द सी ऑप्शन. सो इट हैज टू बी सी ऑप्शन. बट OH नेगेटिव कंसंट्रेशन अगर निकालनी हो तो कैसे निकलेगी? आयनिक प्रोडक्ट यूज करोगे आप, H positive concentration into OH negative concentration, that is equal to 10 raised to power minus 14. Now H positive concentration पता चल गई आपको, 2 into 10 raised to power minus 3 into OH negative concentration that is equal to 10 raised to minus 14. So OH negative concentration will be equal to 10 raised to minus 14 divided by 2 into 10 raised to power minus 3, and this will be equal to 5 into 10 raised to power minus 12 will be the answer for this. OH negative concentration will be 5 into 10 raised to power minus 12 and H positive concentration will be 2 into 10 raised to power minus 3. So the correct option is 55th ka is the C option. Next question is 56th question. 56th question mein he is asking that when 4 gram of NaOH is dissolved in 10 liter of solution the pH is. pH निकालना है और बोला गया है कि 4 ग्राम NaOH डिसॉल्व है 10 लीटर ऑफ सोल्यूशन में. तो pH निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या कीजिए आप? NaOH की कंसंट्रेशन निकालिए, मोलैरिटी निकालिए NaOH की. तो NaOH की मोलैरिटी कैसे निकलेगी? मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं? वेट अपॉन द मॉलिक्यूलर वेट. सो वेट इज 4 ग्राम्स, 4 अपॉन 40. 40 इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH. कितना लीटर्स है? 10 लीटर्स. 4 upon 40, these are number of moles divided by 10 liters. It is the liters of the solution, 10 liters of the solution. So this will be the molarity, and molarity of NaOH जो आ रही है that is equal to 10 raised to power minus 2. Now NaOH आपको पता है is a strong base. It ionizes to form Na positive and OH negative. जितनी कंसंट्रेशन NaOH की होगी उतनी ही कंसंट्रेशन OH नेगेटिव की आएगी. सो इसकी कंसंट्रेशन आप निकाल चुके हो 10 रेज टू माइनस 2, और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी? 10 रेज टू पावर माइनस 2 ओनली. नाउ POH निकाल लीजिए. POH इज माइनस लॉगरिथम ऑफ OH नेगेटिव कंसंट्रेशन, दैट इज इक्वल टू माइनस लॉगरिथम ऑफ 10 रेज टू पावर माइनस 2, दैट इज इक्वल टू 2. Now POH is 2, but he is asking for pH. pH क्या निकलेगा? 14 minus 2, that is equal to 12. So 56 का B 12 is the correct option. इसमें मैंने क्या किया? मोलैरिटी निकाली सबसे पहले. मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन. नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं? वेट अपॉन द मॉलिक्यूलर वेट. वेट दिया हुआ 4 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज 40 ग्राम्स. Liters of the solution is 10 liters. So 4 upon 40 into 10 is equal to 10 raised to a minus 2. This is the molarity. Now NaOH is a strong base. ये ionize होगा Na positive plus OH negative में. जितनी concentration NaOH की होगी उतनी ही concentration OH negative की होगी. That is, this is equal to 10 raised to a minus 2.
नाउ पीओएच क्या होता है? माइनस लॉगरिथम ऑफ ओएच नेगेटिव कंसंट्रेशन, दैट इज माइनस लॉगरिथम ऑफ 10⁻², दिस विल बी इक्वल टू 2. बट पीएच के बारे में पूछ रहा है वो, तो पीएच विल बी 14 माइनस पीओएच, दैट इज इक्वल टू 12 विल बी द आंसर. सो 56 का बी, 12 is the correct option. Next question is 57th question, and that is 100 milliliters of 0.1 normal NaOH are mixed with 100 milliliter of 0.2 normal HCl solution, and the whole solution is made up to 1 liter. The pH of the resulting solution is. तो ऐसे क्वेश्चंस में आपने मिलीमोल्स निकाल लेने दोनों के, और जितना न्यूट्रलाइजेशन होता है उसको न्यूट्रलाइज कर लेना है आपने, और उसके बाद रिजल्टिंग सॉल्यूशन का जो भी बचेगा, चाहे HCl बचे चाहे NaOH बचे, उसकी आपने मोलैरिटी निकालनी है. बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंसिडर द मिलीमोल्स. तो 57th क्वेश्चन, एक चीज गिवन है आपको बेस NaOH, दूसरा गिवन है आपको HCl. मिलीमोल्स कैसे निकलते हैं? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स. मोलैरिटी होती है नॉर्मेलिटी का, मोलैरिटी से रिलेशन होता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी. ना इसमें वैलेंसी जो है NaOH में और HCl में दोनों में वैलेंसीज आर 1. बेसिस के केस में एसिडिटी देखी जाती है कि कितने रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयंस हैं NaOH के, 1. सो बेस एसिडिटी फॉर NaOH इज 1. नॉर्मेलिटी होती है मोलैरिटी इनटू एसिडिटी और बेसिसिटी. तो 1 1 है क्योंकि एसिडिटी और बेसिसिटी दोनों 1 1 है. तो इस केस में नॉर्मेलिटी विल बी इक्वल टू मोलैरिटी दोनों ही केसेस में, NaOH में भी और HCl में भी. सो जो नॉर्मेलिटी है दैट इज इक्वल टू मोलैरिटी ओनली. सो नॉर्मेलिटी NaOH का केस देखें, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स, दैट इज 0.1 इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स इज 100. दीज आर द नंबर ऑफ मिलीमोल्स, दैट इज 10 मिलीमोल्स आ रहे हैं इसके NaOH के. सिमिलरली यू हैव टू कैलकुलेट द मिलीमोल्स फॉर HCl. HCl के लिए कैसे निकालोगे? मोलैरिटी 0.2, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी बराबर HCl के लिए, इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स, दैट इज 100. सो 2/10 into 100, that will be 20 millimoles. और जब न्यूट्रलाइजेशन होगी तो इसके 10 मिलीमोल्स पूरे के पूरे रिएक्ट कर जाएंगे NaOH के, और इसके 10 मिलीमोल्स रिएक्ट करेंगे. तो ये कितना रह जाएगा? रिजल्टिंग सॉल्यूशन में वी विल हैव 10 मिलीमोल्स ऑफ HCl. But we are interested in calculating pH value. For pH value, first of all, we have to calculate the concentration, we have to calculate the molarity of HCl. Molarity कैसे निकलेगी? Number of moles upon volume in liters. Number of moles कैसे निकलेंगे? मिलीमोल्स से. मिलीलीटर्स को लीटर्स में कैसे कन्वर्ट करते हो आप? मिलीलीटर्स को लीटर्स में कैसे कन्वर्ट करते हो? डिवाइडेड बाय 1000 करते हो उसको. सिमिलरली मिलीमोल्स को मोल्स में कैसे कन्वर्ट करोगे? 10 divided by 1000. These are the moles. But HCl concentration कैसे निकलेगी? मोलैरिटी कैसे निकलेगी? मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. कितना लीटर है सॉल्यूशन? कितना बोला देखो, एंड द सॉल्यूशन इज मेड अप टू 1 लीटर. सो सॉल्यूशन इज 1 लीटर. सो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स, दैट इज डिवाइडेड बाय 1. दिस विल गिव यू the molarity, that is 1/100, that is equal to 10 raised to power -2 molar is the concentration of HCl. अब आपको ये पता है कि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है. HCl H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है. तो जितनी HCl की कंसंट्रेशन होगी उतनी ही H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन होगी. दैट मींस H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन विल बी 10 raised to power -2. H पॉजिटिव कंसंट्रेशन अगर पता चल गई आपको, दैट इज इक्वल टू 10 raised to -2, तो pH क्या होगा? pH will be equal to minus logarithm of 10 raised to -2, that is equal to 2. pH कितना आएगा? 2. So 57th का B 2 is the correct option. एक फिर से देखिए, ये मिक्सचर्स वाला क्वेश्चन है. मिक्सचर है, इसमें एक एसिड है, एक बेस है.
मिलीमोल्स निकाले मैंने सबसे पहले। मिलीमोल्स निकालने के लिए मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर चाहिए। मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी दोनों यहां पे सेम होंगी, क्योंकि एसिडिटी और बेसिसिटी जो है 1 है दोनों केसेस में, एसिड्स में भी और बेसिस में भी, बेस में भी। सो फर्स्ट केस में NaOH में मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर 10 मिलीमोल्स आ रहे हैं। इसमें 0.2 मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर 20 मिलीमोल्स आ रहे हैं। जब न्यूट्रलाइजेशन होगी तो इसके 10 मिलीमोल्स पूरे रिएक्ट हो जाएंगे इसके 10 मिलीमोल्स के साथ, and ultimately we will be left only with the 10 millimoles of HCl. Resulting solution में we have only acid HCl, acidic solution होगी, pH will be less than 7. HCl की कंसंट्रेशन निकालनी है, बिकॉज वहां से H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन निकलेगी। HCl की कंसंट्रेशन कैसे निकलेगी? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। मिलीमोल्स पता है, इसको मोल्स में कन्वर्ट करना है आपने। 10 upon 1000, these are the moles, upon volume in liters, that is 1. So it will be 10 raised to a minus 2 molar is the concentration of HCl. तो H positive की concentration कितनी होगी? 10 raised to minus 2 only, because HCl completely dissociate हो जाता है into H positive and Cl negative ions. So H positive concentration पता चल गई 10 raised to a minus 2. pH क्या होता है? Minus logarithm of H positive concentration, that is minus logarithm of 10 raised to a minus 2. This will be equal to 2. So 57th का B 2 is the correct option. Next is 58th question. 58th question is the pH of a solution is 6. Sufficient amount of acid is added to decrease the pH to 2. The increase in the hydrogen ion concentration is, so he is asking for the increase in the hydrogen ion concentration. सबसे पहले pH वैल्यूज जो गिवन है आपको, pH वैल्यूज में से आप H पॉजिटिव कंसंट्रेशंस कैलकुलेट कीजिए। तो 58th क्वेश्चन, मैंने कहा कि जो pH वैल्यूज हैं उससे आप H पॉजिटिव कंसंट्रेशंस कैलकुलेट कीजिए। सबसे पहले pH कितना गिवन है आपको? 6। pH क्या होता है? माइनस लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव कंसंट्रेशन, दिस इज इक्वल टू 6, दैट इज लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस 6, एंड देयरफॉर H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6। सेकेंड, आपने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एसिड डाल दिया तो pH डिक्रीज हो गया और pH बन गया 2। वहां पे भी आप H पॉजिटिव कंसंट्रेशन ऐसे ही निकालोगे, दैट विल बी इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2। तो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इसमें इंक्रीज हो गई है, और कितना इंक्रीज आया? द इंक्रीज इन द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज बाय हाउ मेनी टाइम्स, दिस यू हैव टू कैलकुलेट। सो इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे? 10 रेज़ टू माइनस 2, दिस इज द कंसंट्रेशन जो बाद में हुई है, डिवाइडेड बाय जो ऑलरेडी पहले थी। तो दिस विल बी इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन। जैसे आपसे पूछा जाए कि 2 नंबर है उसको 10 बना दिया, तो कितने टाइम से इंक्रीज किया? 10 by 2, दैट इज 5 टाइम्स। सिमिलरली यहां पे भी वैसा ही हो रहा है कि pH जो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन है पहले 10 रेज़ टू माइनस 6 थी, अब इंक्रीज करके कंसंट्रेशन इज 10 रेज़ टू माइनस 2। So by how many times the H positive concentration has increased? 10 raised to minus 2 divided by 10 raised to minus 6. This is equal to 10 raised to power 4 times. So answer will be 10 raised to power 4 times. This question में pH values given है, pH values से I have calculated H positive concentrations दोनों cases में, और H positive concentration में कितना increase आया, that's what he is asking for. So that will be 10 raised to minus 2 divided by 10 raised to minus 6, that is 10 raised to power 4 times is the increase. So 58th का D 10 raised to power 4 times is the correct option. Next is 59th question. Which of the following salts undergoes anionic hydrolysis? तो anionic hydrolysis कौन से salt का होता है? Salt of weak acid and strong base. जैसे CH3CONA, salt of weak acid and strong base. That means इसमें आपने salt identify करना है जो कि weak acid से आया हो और strong base से आया हो। तो that will be D, K2CO3.
K कहां से आया? K पॉजिटिव, KOH से, which is a strong base. CO3 कहां से आया? CO3 2 नेगेटिव, H2CO3 से, that is a weak acid. H2CO3 is a weak acid, KOH is a strong base. So this is K2CO3 is a salt of weak acid and strong base, and it will undergo anionic hydrolysis. So 59th ka D, K2CO3 is the correct option. Next is 60th question. And 60th question is, a white salt is readily soluble in water and gives a colorless solution with a pH of about 9. The salt would be, इसमें देखिए white salt है पहली बात, और pH 9 है. That means salt pH 9 है, that means basic solution बना रहा है. Salt किसका होना चाहिए? Weak acid and strong base का. जो stronger portion होता है, that decides the pH. तो pH 9 है, that means solution is basic. What does it mean? It means that salt जो है उसमें stronger portion क्या होना चाहिए? Strong base होना चाहिए. Weaker portion क्या होना चाहिए? Weak acid होना चाहिए. तो salt should be of weak acid and strong base. कौन सा होना चाहिए ये? It has to be B option, CH3COONA. CH3COO कहां से आया? Weak acid से, CH3OOH से. Na कहां से आया? Strong base से, NaOH से. So pH इसका will be greater than 7 because this will be basic solution. इसकी जो solution होगी that will be basic. तो 60th का B, CH3COONA is the correct option. Next is 61st question. Ammonium cyanide is a salt of NH4OH, Kb given है, and HCN is given, which is उसके लिए भी Ka given है 4.0 into 10 raised to minus 10. Hydrolysis constant of 0.1 molar NH4CN at 25 degrees Celsius is. कौन सा salt हुआ ये NH4CN? This is a salt of, NH4CN is a salt of weak acid and weak base. NH4 कहां से आया? NH4OH से. ये एक weak base होता है. CN कहां से आया? CN नेगेटिव कहां से आया? HCN से. HCN is a weak acid. कौन सा salt हुआ ये वाला? Salt of weak acid and weak base. और salt of weak acid and weak base के लिए hydrolysis constant क्या होता है? KH पूछ रहा है ये. KH क्या होता है? थर्ड केस है. KH की वैल्यू क्या होती है इसके लिए? KH is equal to KW upon KA into KB. So now KW is 10 raised to power minus 14. KA given है आपको 4 into 10 raised to power minus 10 into KB is also given 1.8 into 10 raised to power minus 5. You have to calculate this value. After calculating this value, you will get the value of KH, और KH आ रहा है इसमें, सारी values हम calculate करें तो that is equal to 1.4 is the answer. 61st का A 1.4. अब ऐसे क्वेश्चंस में देखिए अगर Ka Kb दोनों गिवन है तो दैट मीन्स Ka किसके लिए गिवन होता है? वीक एसिड अगर हो. Kb कब गिवन होता है? अगर वीक बेस हो. दैट मीन्स कौन सा केस होना चाहिए? NH4CN, वीक एसिड एंड वीक बेस का. और वीक एसिड एंड वीक बेस के लिए KH क्या होता है? KW upon KA into KB. और वही वैल्यूज मैंने डाली है कि KW upon KA into KB, this will be 10 raised to minus 14 KA into KB. Answer is 1.4. So 61st का A 1.4 is the correct option. Next is 62nd question. The dissociation constant of acetic acid is 1.8 into 10 raised to minus 5. Ka given है इसके लिए. Hydrolysis constant of 0.1 molar sodium acetate is. Now sodium acetate कौन सा salt हुआ? तो salt hydrolysis वाले क्वेश्चंस में सबसे पहला काम यही है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा सॉल्ट है. वीक एसिड का है, वीक बेस का है, स्ट्रॉन्ग एसिड का है, स्ट्रॉन्ग बेस का है, कौन सा टाइप ऑफ सॉल्ट है. अगर वो आपने एनालाइज सबसे पहले कर लिया देन देयर इज नो प्रॉब्लम इन सॉल्विंग दीज सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस. So first you have to identify the type of the salt.
जैसे यहाँ पे सोडियम एसीटेट की बात हो रही है, वो तो आपको पता लग ही गया होगा अभी तक कि सोडियम एसीटेट जो है CH3COONA जो है, Na कहां से आया? स्ट्रॉन्ग बेस NaOH से। CH3CO कहां से आया? CH3COOH से, विच इज अ वीक एसिड। कौन सा केस हुआ? फर्स्ट केस हुआ, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। उसके लिए KH क्या होना चाहिए? KW/Ka। KH विल बी KW/Ka। KW आपको पता 10⁻⁻14। Ka गिवन है यहाँ पे 1.8 into 10⁻⁻5, and you have to calculate this. That will be hydrolysis constant for this type of salt, and this will be equal to 5.56 into 10⁻⁻10 will be the answer. So correct option for 62nd question is B option, 5.56 into 10⁻⁻10. Next is 63rd question. A mixture of weak acid, say acetic acid, and its salt with a strong base, say sodium acetate, is a buffer solution. बफर सॉल्यूशन तो होगा ही, क्योंकि वीक एसिड है और उसका सॉल्ट है विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। सोडियम एसिटेट इज अ सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, NaOH के साथ वो उसका सॉल्ट है। तो वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस इज एन एसिडिक बफर। Which other pair of substances from the following may have a similar property? तो नीचे वाले जितने भी केसेस हैं कहता है, उनमें से कौन सा ऐसा केस है which will also behave as a buffer solution? तो A ऑप्शन देखिए, HCl दिया है, तो कभी भी ये बफर नहीं हो सकता, बिकॉज HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। आपको वीक पोर्शन चाहिए, वीक एसिड चाहिए या वीक बेस चाहिए, फिर आपने सॉल्ट देखना है उसका कि किस तरह का सॉल्ट है। पहले आप वीक एसिड या वीक बेस देखिए। बी ऑप्शन पे आइए, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, नो इट कैन नॉट बी द ऑप्शन। सी KOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है KOH, इट कैन ऑल्सो बी, इट इज ऑल्सो नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। इट हैज टू बी डी ऑप्शन, बट चेक इट आउट कि डी ऑप्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता। NH4OH क्या है? वीक बेस। और NH4Cl क्या है? NH4OH का सॉल्ट है विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड HCl। NH4 को आप रिएक्ट करवाइए, NH4OH को रिएक्ट करवाइए विद HCl, क्या बनेगा? NH4Cl। तो 63rd क्वेश्चन देखिए, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। NH4OH इज अ वीक बेस, और इसका सॉल्ट ले अगर HCl के साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, तो NH4OH प्लस HCl क्या बनाएगा? कौन सा सॉल्ट बनाएगा? NH4Cl प्लस H2O। और यही बात हो रही है, NH4Cl की बात हो रही है, विच इज अ सॉल्ट ऑफ वीक बेस NH4OH, किसके साथ? स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, HCl के साथ। तो NH4OH और NH4Cl बेसिक बफर हुआ। NH4OH is a weak base and its salt with a strong acid, बेसिक बफर हुआ। तो 63rd का डी जो सॉल्यूशन है, डी जो ऑप्शन है, that will behave as a buffer, basic buffer. So 63rd का D. 64th question, which of the following solutions cannot act as a buffer? Cannot, जहां पे भी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस दिख गया, वो ऑप्शन देख लीजिए आप। ये बफर की तरह कौन सी चीज एक्ट नहीं कर सकती? जहां पे एक स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया या स्ट्रॉन्ग बेस आ गया, दैट कैन नॉट एक्ट एज अ बफर। तो स्ट्रॉन्ग एसिड डायरेक्टली नजर जा रही है आपके सी पे। 64th का HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो सी कैन नॉट एक्ट एज अ बफर। तो 64th का इट हैज टू बी सी ऑप्शन, HCl प्लस NH4Cl। नेक्स्ट इज 65th क्वेश्चन, अ बफर सॉल्यूशन ऑफ pH 9 कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग। pH चाहिए 9, pH 9 कब होगा? pH ग्रेटर देन 7 कौन सी सोल्यूशन होती है? बेसिक सोल्यूशन। बेसिक सोल्यूशन चाहिए आपको, तो बेसिक सोल्यूशन बन सकती है सी ऑप्शन में। देखिए आप, NH4OH एंड NH4Cl। NH4OH वीक बेस, NH4Cl NH4OH का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड, तो कौन सा बफर हुआ? ये बेसिक बफर हुआ। NH4OH एंड NH4Cl ये बेसिक बफर है। तो बेसिक बफर के लिए pH क्या होता है? ग्रेटर देन 7, तो इट हैज टू बी सी ऑप्शन। सो 65th का सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ कम टू 66th क्वेश्चन,
For preparing a buffer solution of pH 5 by mixing sodium acetate and acetic acid, the ratio of the concentration of salt and acid should be. तो एसिडिक बफर की बात हो रही है। पहली बात तो सोडियम एसिटेट एंड एसिटिक एसिड, आपको पता है एसिडिक बफर के लिए pH इज इक्वल टू pKa प्लस log of salt concentration upon acid concentration. This is Henderson equation. तो pH क्या चाहिए इसको? pH चाहिए 5. pKa क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ Ka. तो Ka की वैल्यू गिवन है आपको वहां पे 10 रेज टू माइनस 5, दैट मीन्स माइनस लॉग ऑफ 10 रेज टू माइनस 5 कितना होगा? 5. 5 इज इक्वल टू 5 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट ओवर एसिड. सॉल्ट क्या है यहां पे? सॉल्ट इज सोडियम एसिटेट CH3CONA सॉल्ट, उसकी कंसंट्रेशन, और एसिड क्या है यहां पे? CH3COH वीक एसिड. 5 इज इक्वल टू 5 प्लस दिस हैज टू बी 0, तभी 5 इज इक्वल टू 5 आएगा, इक्वेशन फुलफिल होगी ये वाली. दिस हैज टू बी 0 और दैट मींस ये वाली चीज क्या होनी चाहिए? दिस हैज टू बी 1 because log of 1 is equal to 0. That means CH3CONA और CH3COH की कंसंट्रेशन का रेशियो क्या होना चाहिए? 1:1. So आंसर क्या होगा 66 का? B 1:1 is the correct option. देखिए हेंडरसन इक्वेशन आई हैव यूज्ड. pH आपको पता है pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट कंसंट्रेशन अपॉन एसिड कंसंट्रेशन. 5 बोला pH होना चाहिए. अब pKa क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ Ka प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट कंसंट्रेशन अपॉन एसिड कंसंट्रेशन, और Ka इज गिवन टू यू 10 raised to minus 5 is Ka, माइनस लॉग ऑफ Ka will be 5 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट की कंसंट्रेशन दैट इज CH3CONA की कंसंट्रेशन अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन CH3COH की कंसंट्रेशन. 5 इज इक्वल टू 5 कब होगा? जब ये चीज सारी की सारी 0 हो. और 0 कैसे आ सकती है? ये कि अगर ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन जो है ये 1 हो, क्योंकि लॉग ऑफ 1 0 होता है. और इसका 1 होने का मतलब क्या हुआ कि कंसंट्रेशन का रेशियो क्या होना चाहिए सॉल्ट और एसिड की, या फिर CH3CONA और CH3COH की कंसंट्रेशन का रेशियो शुड बी 1:1. तो 66 का B 1:1 is the correct option. Next is 67th question. 1 liter of a buffer solution containing 0.01 molar NH4Cl and 0.1 molar NH4OH having pKb of 5 has pH of. तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा टाइप ऑफ बफर है ये. NH4OH and NH4Cl. It is a basic buffer. वीक बेस है NH4OH और उसका सॉल्ट है NH4Cl. कौन सा टाइप ऑफ सॉल्ट है? NH4OH का सॉल्ट है विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड. तो बेसिक बफर हुआ ये, और बेसिक बफर के लिए हेंडरसन इक्वेशन यूज करते हुए आप POH निकालेंगे सबसे पहले. POH अगर निकल गया तो 14 minus POH will give you pH value. So first of all you will calculate POH for this basic buffer. And POH क्या होता है? Henderson equation says that POH is equal to pKb plus log of salt concentration upon base concentration. वैल्यूज डालिए. pKb कितना गिवन है? 5 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट की कंसंट्रेशन NH4Cl की कितनी कंसंट्रेशन है? 0.01 अपॉन बेस की कंसंट्रेशन 0.1. So this will be POH is equal to 5 plus log of 1 upon 100, और ये 1 upon 10. This will be 1 upon 10. If we solve that, this will be 1 upon 10. This is 5 plus log of 1 minus log of 10. Log of 1 is 0 minus log of 10. Log of 10 is 1. So this is 5 minus 1. That is equal to 4. POH आ गया 4. But we are interested in the value of pH.
So pH will be 14 minus 4, that is equal to 10. So 67th ka B, that is 10, is the correct option. So 67th B is the answer.